Hi students. Today I'm going to begin new chapter of grade 7, chapter number 15, winds, storms and cyclones. In this chapter, first of all, we will discuss about atmosphere. What is meant by atmosphere? So, definition of atmosphere is the earth is covered by a blanket of air called atmosphere. You know that earth is just like a sphere and it is covered with lots of gases. That is, in short, we are calling it blanket. So, earth is covered or surrounded by a blanket of air. It's called atmosphere. Very simple definition. Air has weight. If we will just collect some gases and we will keep it in a container, you will come to know air has weight and it exerts pressure. That is, you know, when we are experiencing कि बहुत windy atmosphere है, जिस दिन आपको लगेगा, you will have that experience when you are riding your bicycle or scooter. So in case of bicycle, it's very easy to understand how strong this air is, how strong its pressure would be. So on the earth's surface, this pressure is called atmospheric pressure. First of all, atmosphere. Second term is atmospheric pressure. So air has weight and exerts pressure on the earth's surface, because when we are talking about earth's surface, so earth's surface is surrounded or covered by lots of gases, and these gases have weight and it exerts pressure. That pressure is called as atmospheric pressure. Simple. Now, air exerts pressure, but how? Can you explain it, ma'am? This question must arise in your mind. So, air has weight and exerts pressure. For example, it is easier to ride a bicycle in the direction of blowing wind. If you have not experienced this, or you are not able to recall this situation, after this, watching this video, whenever you are riding your bicycle, you have to observe it. If you are riding your bicycle, the way wind is blowing, it's very easy to ride the bicycle. No need to put more your efforts for riding it. But when you are riding a cycle taking place just opposite the wind blowing, it is quite difficult. So against the direction of wind, it is needed lots of strength and force to riding the bicycle. Similarly, it is easier to row a boat in the direction of the wind than against the direction of wind. If some students, they are just staying nearby river, कुछ pond है, you people are going for the आप लोग जाते हैं है ना, जैसे ट्रिप पिकनिक, तो वहाँ पे you will have the chance, जैसे बोट में जाना है, सेलिंग ऑफ बोट है, तो that time you can observe if windy atmosphere is there. So the way wind is blowing, it is easy to row the boat, and opposite it or against it is quite difficult because air exerts pressure. Now, when air is filled into a bicycle tube, है ना, एयर क्या किया, एयर को अगर हमने बाइसिकल ट्यूब में फिल कर दिया, इट इन्फ्लेट्स, वो फुल जाता है. सो what it is showing, it is inflates because of the pressure exerted by air on the tube. तो हमने we have discussed 3 examples. First, if you are riding bicycle, so same direction of wind and opposite direction of wind, what happen? You know that even the sailing of boat, that is also same thing. And when you fill एयर इन ट्यूब्स, बाइसिकल ट्यूब में आपने फिल किया, तो यू विल ऑब्जर्व जैसे पंक्चर हो गया है, तो दैट टाइम वो कैसे हो जाता है, इट इज़ जस्ट एम्प्टी, यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस, यू नो. एंड व्हेन यू फिल एयर, सो इट इज़ इन फ्लैटन, वो बड़ा हो जाता है. दैट इज़ ऑल्सो वी केम टू नो.
So why this is so? It is due to the pressure of air. So with these three examples, we can conclude that air exerts pressure on all objects. Clear? Air exerts pressure on all objects. Wind vane is an instrument used to find the direction of wind. This is extra knowledge for you. Okay. Now we have activity to show that air exerts pressure. Those students they are interested, and now students you are at home only. Though daily you are having only one Zoom class. 2 3 teachers are sending their videos or writing books. So you have lots of time in your hand. So I hope some parents when they met they were telling ki he is or she is not doing anything at home, these people are busy in mobile and lots of things. So I would like to just recommend this thing, students, whatever activities are given in your NCERT textbook, science textbook, as well as whatever the activities I have given you since beginning, you can perform that activities at home. It is easy, and you have to just do the activity which are very easy, and the material is easily available at home. You have to choose the activity and you will go through this activity. Your concept definitely will be clear, and this that what you came to know, what you learned from that experiment, it will remain in your mind throughout your life. Because the things said by anything, we could not recall it long time. Okay, but the things we have seen, we have experienced. So I think throughout the life you could not just forget these things whatever you have learned through activities. So now you have time, you can utilize it very wisely by doing activities at home. The activities are very easy. So first activity I would like to just share with you, students, to show that air exerts pressure. तो एक टीन लेना है आपको, है ना, फिल विथ वाटर, वाटर से भर देना है, एंड उसको बर्नर पे रख देना है आपको, हीट इट till the water starts boiling. Take a tin and fill it with water, then heat this tin with water on a burner till the water starts boiling. Now remove the tin from the burner. अब क्या करना है, वाटर फिल कर दिया, उसको हीट कर दिया, वाटर हैज स्टार्टेड बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे और 373 केल्विन पे वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. तो द मोमेंट वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, remove it from that burner and cover the mouth obtained with lid. Tightly put this in the sink and pour cold water on it. फिर क्या करना है, जो टिन लिया था उसका लीड उस पर यू हैव टू कवर इट, पैक करना है. एंड वो जो वॉट एवर टिन यू हैव टेकन जिसमें पानी था, वाटर वॉज स्टार्टेड बॉइलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, फिर आफ्टर दैट आपने उसका लीड लगाया, फिर आपको वो उठा के जस्ट यू हैव टू यूज सम क्लोथ और समथिंग to pick up that tin, because that is hot, and keep it in sink and pour cold water in it. You have to just turn on. आपको क्या करना है, टैप स्टार्ट कर देना है, cold water will pour on it. तो what observation you will get, the tin loses its shape. वो जो शेप था टीन का वो क्या हो जाएगा, वो it will not remain in a original state, वो जैसे क्रश हो जाएगा. So shape, this happens because when the water is in the tin boils, gets converted into steam. So why this has happened, क्यों होगा ऐसा, तो we have put this tin on the burner, गैस बर्नर पे हमने रखा था. We have supplied heat until, हमने कब तक दिया था उसको हीट, until the water is not converted into steam, वेपर स्टेट पे वाटर नहीं जा रहा है. द मोमेंट वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, हम क्या करते हैं उसको, वी हैव टेक ऑफ इट. सो वो क्या हो गया, लैटेंट हीट, वो लैटेंट हीट है, हिडन हीट हो गया. हमने वी हैव मीन्स बहुत टाइम हमने उसको हीट किया, उसके बाद वो वाटर स्टार्ट हो गया था बॉइलिंग. तो व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो क्या हो गया,
दिस ओवर द टीन स्टीम कंडेंसेस एंड चेंजेस बैक टू लिक्विड. इसमें क्या हो गया, कन्वर्टेड इनटू स्टीम व्हेन कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर द टीन. ये बॉइल्ड वाटर किस में कन्वर्ट हो गया था, स्टीम में कन्वर्ट हो गया था. व्हेन वी हैव डिक्रीज टेम्परेचर, व्हेन वी हैव पोर वाटर ऑन इट, तो उसका टेम्परेचर कम हो गया. व्हेन द मोमेंट टेम्परेचर गोज डाउन, स्टीम जो था 100 डिग्री सेल्सियस पे जो इट वॉज कन्वर्टेड इनटू इन अ गैसियस स्टेट, टेम्परेचर कम हो गया. अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू steam condenses means steam is converted into water because temperature कम हो गया तो वो gaseous state से liquid state आ जाता है. You know, you have seen in physical and chemical change, you know, students. And changes back to liquid state, so reducing the amount of air inside, does reducing the air pressure inside the tin. इसकी वजह से क्या हो जाएगा, steam is converted into, अब जो air थी, हमने टीन में क्या किया था, वाटर फिल किया था. व्हेन वाटर स्टार्ट बॉइलिंग तो एयर क्या हो गई, एयर एस्केप्ड एंड एयर की जगह दिस स्टीम ने ले लिया था. ओके, और हमने उसको क्या किया, वी हैव कवर अप इट विथ लीड से हमने कवर कर दिया. जो गैसियस स्टेट था वो गैसेस वर फिल्ड विथ स्टीम एंड द मोमेंट टेम्परेचर फॉल डाउन दैट स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड एयर क्या हो गई, अब गैसेस तो वहाँ पे रहे नहीं, जो स्टीम था इट वॉज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड फिर क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर गेट्स रिड्यूस्ड, वहाँ का एयर प्रेशर कम हो गया एंड दैट्स वाई वो टीन था इट इज़ नॉट रिमेन इट्स ओरिजिनल दैट कंडीशन, वो क्रैश हो जाता है. सो अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड डज रिड्यूसिंग द एयर प्रेशर इनसाइड द टिन. एंड कंक्लूजन, and my dear students, when I'm asking you do experiment and write down, it is in the form of, तो you have to do it in this way. आपको ऐसे करना होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है, then requirement लिखना है, observation, conclusion, in this way. So conclusion, the air pressure inside the tin becomes lesser than the air pressure outside, causing the tin to get compressed. Why that tin was compressed? बिकॉज एयर प्रेशर इनसाइड द टिन गेट reduced, कम हो गया. इसकी वजह से आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट, है ना. वाटर जब स्टीम में गया तो एयर चली गई थी, स्टीम ने उसकी जगह ले ली थी. जब हमने ऊपर से कोल्ड वाटर डाला तो स्टीम था, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर. अब वहाँ पे एयर नहीं रहा, एयर रहा नहीं इनसाइड द टिन, दैट्स वाई एयर प्रेशर कम हो गया. आउटसाइड द टीन तो एयर प्रेशर है, अंदर का एयर प्रेशर कम हो गया, दैट्स वाई वो टीन था इट इज कॉम्प्रेस्ड, वो उसका ओरिजिनल जो शेप था इट कुड नॉट रिटेन दैट ओरिजिनल शेप. दिस इज द with this activity we came to know कि air has pressure. Now we will move towards next topic, that is wind. अब हम next topic की बात करेंगे, that is wind. So what is wind? क्या होता है? Some students wind हम किसे बोलते हैं? हवा ना, हिंदी में उसे हवा बोलते हैं. So it is moving air is called wind. जो हवा घूमती फिरती है उसे हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर. जहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा, मीन्स जहाँ पे हवा कम हो जाएगी, वहाँ ये ज़्यादा एयर प्रेशर वाली जगह से एयर मूव करना स्टार्ट करती है एंड इसकी वजह से वी आर एक्सपीरियंसिंग विंड. और कभी कभी बहुत ज़्यादा विंड होती है. आई होप यू हैव एक्सपीरियंस्ड लॉट्स ऑफ टाइम. जैसे कभी कभी इट इज़ हैपन इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन ऑल्सो. तो व्हाट हैपन, ऐसे कभी कभी हो जाता है ना. सो वाई दिस इज हैपन, इट इज़ दिस द वो जो विंड का फोर्स है, सो डेली इट इज़ नॉट सेम. सम डेज इट इज़ हाई, बहुत तेज़ हवा चलती है, हम ऐसा बोलते हैं. तो व्हाट हैपन, जब तेज़ हवा चलती है तो डेफिनेटली वहाँ पे हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर में विंड स्टार्टेड ब्लोइंग एंड ड्यू टू दिस वी आर एक्सपीरियंसिंग हाई स्पीड ऑफ विंड. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? Air pressure reduces, the wind speed increases.
द वे मीन्स एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एंड फिर वो क्या हो जाएगा, विंड स्पीड इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज एयर प्रेशर कम हो गया मीन्स एयर कम हो गई एंड जहाँ पे द प्लेस वेयर द एयर हैज़ द ह्यूज क्वांटिटी इमेंस क्वांटिटी इट स्टार्ट्स रनिंग इट टेक्स द प्लेस वेयर एयर इज लेस एंड ड्यू टू दिस हाई स्पीड जो विंड है दैट इज moving. That's why high speed winds are accompanied by reducing air pressure. So जो अगर air pressure reduce हो गया तो उसकी वजह से high speed winds move करती है. Now next topic is roofs of huts or godowns get blown off when the wind speed is very high. So scientifically we want to discuss this कि क्या है, जैसे huts means क्या होता है, हट्स को हिंदी में झोपड़ी बोलते हैं आई होप. तो ये जो जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, यू हैव लर्नड इन फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ में आपने वो कच्चा हाउस और पक्का हाउस वाला कंसेप्ट यू हैव ऑलरेडी लर्नड यू नो. तो ये जो कच्चा हाउस वाला कंसेप्ट है दैट इज इंक्लूडेड इन हट्स. तो उसमें क्या होता है, जैसे गोडाउन है जिस जिस द जैसे हम क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट जिसका रूफ इतना टाइटली बाउंड नहीं है, ओके, दैट इज टेम्पररी. इट इज मेड अप ऑफ टेम्पररी मटेरियल दैट इज नॉट वेरी पैक हम बोल सकते हैं. तो इन सच केसेस उनके क्या हो जाते हैं, जब विंड स्पीड हाई होता है तो उनका रूफ निकल जाता है. Clear? This is actually question. Now this happen because when the high speed winds blow over the roofs, it reduces the air pressure about the roofs. जैसे वो विंड ब्लो करना स्टार्ट करेगी विथ हाई स्पीड तो क्या हो जाएगा, विंड ब्लो मतलब मूव कर रही है तो रूफ के ऊपर का एयर प्रेशर कम हो गया क्योंकि हवा तो जा रही है. व्हेन द एयर इज मूविंग उसकी वो क्या हो रही है, निकलते जा रही है. तो डेफिनेटली जब द क्वांटिटी ऑफ एयर रिड्यूसेस तो क्या हो जाएगा उसका द रूफ्स द हायर एयर प्रेशर बिलो द रूफ एक्सर्ट्स लार्ज फोर्स लिफ्ट अप द रूफ. तो ऊपर वाला एयर प्रेशर कम हो जाएगा बिकॉज एयर इज मूविंग, बहुत स्पीडली एयर मूव हो रही है तो एयर प्रेशर वहाँ रिड्यूस हो जाएगा. बट बिलो द रूफ एयर प्रेशर इज हाई क्योंकि जैसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ बिल्डअप, जैसे 4 वॉल्स में वो बंधा हुआ एयर है वो तो वैसे ही रहेगा. इट इज़ नॉट स्टार्टेड ब्लोइंग, ऊपर वाला तो कम हो गया नीचे वाला ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एयर प्रेशर वाला वो क्या करेगा, वो एयर जहाँ पे एयर कम है वहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगा अंदर वाला, दैट इज़ हाई एयर प्रेशर. एंड ड्यू टू दिस the roofs of huts or godowns get blown off when the wind speed is very high. Very क्या बोल सकते हैं, this is very easy to understand. You need to understand only the thing when the wind blows in with very high speed तो the air present on this roof किसी के ऊपर का ऐसा ही होता है, सेम है ना. जब विंड ब्लो करना स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली एयर प्रेशर रिड्यूस्ड देयर, हमारे रूफ के ऊपर का एयर प्रेशर रिड्यूस ही होता है एंड जो नीचे वाला एयर प्रेशर है वो रिमेन सेम. तो उसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा ही है. बट वॉट एवर द होम हाउसेज द प्लेसेस वी आर लिविंग तो उसका रूफ कैसे होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू फेस सच सिचुएशंस. हम ऐसे घर बनाते हैं, ऐसे रूफ बनाते हैं जनरली जो पक्का हाउस में इंक्लूडेड है कि दिस रूफ कैन एक्सपीरियंस सच सिचुएशन. दैट्स वाई वो प्रॉब्लम पक्का हाउस में नहीं आता है. बट कच्चा हाउस कंसेप्ट जैसे हट्स है, कुछ गोडाउंस है जिसमें टेम्पररी मटेरियल यूज़ किया हुआ है तो वहाँ पे दे आर नॉट वेरी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ पे दे कुड नॉट फेस दिस लो एयर प्रेशर एंड हाई एयर प्रेशर वाला कंसेप्ट. इट कुड नॉट, उसको टॉलरेट नहीं होता है. दैट्स वाई दैट रूफ्स ऑफ. अंडरस्टूड. नाउ I'll explore this explanation with activity to show that high speed winds are accompanied by reduced air pressure. कि हमें वो प्रूव करना है कि जो एयर प्रेशर है, जैसे विंड ब्लो करना स्टार्ट हो गया, इट इज़ ड्यू टू द एयर प्रेशर कहीं पे कम हो गया एंड दैट्स वाई वो हाई स्पीड वाला विंड होता है. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव और मोटो ऑफ दिस एक्टिविटी. तो टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर that is about 15 centimeter. This is also you can do at your home. The previous one activity also you can do at home. एक 15 सेंटीमीटर का लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर का उसका क्या रहेगा, विड्थ रहेगा एंड 15
ऐसे मतलब 15 सेंटीमीटर वो लॉन्ग रहेगा। वो पेपर लेना है, होल्ड इट टाइटली विथ योर थंब एंड फिंगर से उसको होल्ड करना है, ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो एयर ओवर इट। यू विल ऑब्जर्व दैट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप राइजेस अप। आपको क्या पता चलेगा, आप यहाँ से एयर जैसे आप ब्लो कर रहे हो तो जो लास्ट जो एंड है वो ऊपर हो जाएगा। दिस हैपन्स, वो स्ट्रिप का एंड राइजेस अप। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन यू ब्लो एयर ओवर द पेपर स्ट्रिप, the increased wind speed reduces the air pressure on the top. The air pressure below the strip is higher and lifts the paper strip up. क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से इफ आपको घर पे करके ही देखना है स्टूडेंट्स। हम ब्लो करेंगे तो एयर यहाँ से निकल जाएगी। मैं ब्लो कर रही हूँ मीन्स एयर मूव हो जाएगी, एयर मूव हो रही है मीन्स एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बट स्ट्रिप के नीचे का एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा एंड वो ज़्यादा एयर प्रेशर वो स्ट्रिप को ऊपर खींचेगा। दिस इज द बेसिक लॉजिक। Now hot air is lighter, it rises up. This is also very important. You will have in higher classes also. In lots of mechanism you will have the question कि why this is happen. तो उसका आंसर ये होता है, मतलब you will have, आपको वो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको ये आंसर देना पड़ेगा। ये मैकेनिज्म है कि the way the temperature is increases, जब the when in order to temperature is increases definitely air become lighter, air का weight कम हो जाता है and air rises up। जैसे weight कम हो जाता है air could not retain on the same place, वो क्या कर लेती है, it starts moving up, ऊपर चली जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो एयर क्या हो जाएगी, एयर बिकम लाइटर एंड इट मूव्स अप। ओके, देन रियल एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एयर, एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। हॉट एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप। कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स रशेस टू टेक इट्स स्पेस, रिजल्टिंग इन कन्वेक्शन करंट्स। ये कन्वेक्शन करंट्स का ऑल्सो आई हैव टॉट यू इन 7th लेसन में। वो ब्रीज वाला, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आई हैव टॉट यू, उसमें कन्वेक्शन था। तो व्हाट हैपन, जैसे लैंड है एंड वाटर है, लैंड क्या हो जाती है बहुत जल्दी, मीन्स वेरी अर्ली इट स्टार्ट्स हीटिंग, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इट कूल्स वेरी ईजी, जल्दी वो हो जाता है। एंड सो व्हाट हैपन, फिर जैसे वो लैंड हीट करेगी जल्दी तो उसके अराउंड जो एयर है इट्स टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, इट बिकम्स हॉट एंड इट मूव्स अप। वो राइजेस अप, मूव्स अप एंड ड्यू टू दिस वहाँ पे reduced एयर प्रेशर एंड एयर स्टार्ट मूविंग द एयर। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनेमोमीटर। विंड स्पीड का इंस्ट्रूमेंट है, the instrument by which we can measure the wind speed is called anemometer. To show that air expands on heating and contracts on cooling, you can see students only you need to do at home. It is possible then it's okay, नहीं है तो फिर कोई issue नहीं है, you can do it in school if school will start very soon. Now my dear students, you have to give answer of these questions in comment box. Just tell me how was the video. You have to tell me, you have to ask your friends, those in your contact, ask them to subscribe my channel. I have started the to making videos of 9th class chemistry also. Basically I am chemistry teacher. My qualification is MSc B.Ed. So MSc I have done from chemistry. So I have started that, and if your siblings, your relatives, your friends, someone is in 9th class, you can ask them, watch my video and just how it was, just tell me in comment box. These questions are given, give me answer in comment box. Now we will discuss about generation of winds. कैसे generate होता है winds. This is till time this concept is clear. Due to reduced air pressure reduce हो जाता है and wind blow करना start कर देता है. The greater the difference in air pressure, the greater is the wind speed. जितना ज़्यादा एयर प्रेशर रिड्यूस होगा, यहाँ रिड्यूस होगा तो इन समवेयर अदर वे वहाँ पे वो उतना ज़्यादा हो जाएगा एंड दैट्स वाई विंड स्पीड उसका उतना ज़्यादा रहेगा। बेसिक मैकेनिज्म विंड का मैकेनिज्म ये बस यही है कि एयर प्रेशर रिड्यूस होता है इन वन प्लेस एंड द अदर प्लेस डेफिनेटली इट इज़ कंपेयर्ड टू दिस हाई, and due to this from high air pressure to low air pressure wind starts moving or blowing.
जिसे हम क्या बोलते हैं, हाईली विंड स्पीड बोलते हैं. विंड करंट इज जनरेटेड ऑन द अर्थ ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. इक्वेटर एंड पोल्स, इक्वेटर कहाँ आएगा, बिल्कुल पैरेलल टू सन आएगा. एंड पोल्स जैसे नॉर्थ एंड साउथ साइड ऑफ द अर्थ, जिसे हम पोल्स बोलते हैं. सो ये जो अनइवन हीटिंग होता है, ड्यू टू दिस uneven heating between the equator and poles of the earth, you can see I have brought image on your screen for your अंडरस्टैंडिंग. इक्वेटर बिल्कुल मिडल वाला है जहाँ पे सनराइज बिल्कुल पैरेलल आते हैं, है ना. पैरेलल सनराइज आएंगे तो डेफिनेटली वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा. एंड जो पोल्स है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एस एंड एन दिया हुआ है. नीचे वाला एस है, ऊपर वाला एन है. जब सन ऐसे रहेगा, सन ऊपर रहेगा, तो इक्वेटर पे पैरेलल लाइन आएंगे, है ना, परपेंडिकुलर रेज आएंगे. एंड वहाँ पे ऑब्लिक रेज चल जाएंगे, जैसे साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में. वहाँ पे सनलाइट कैसे होगा, मिनिमम सनलाइट विल रीच ओवर देयर एंड मैक्सिमम सनलाइट विल रीच इन इक्वेटर एरियाज. तो इक्वेटर एरियाज में टेम्परेचर हाई रहेगा. व्हेन टेम्परेचर इज हाई, तो एयर टेम्परेचर, द मोमेंट टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, एयर बिकम लाइटर, इट मूव्स अप. एंड फिर क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर इज रिड्यूस्ड एंड द प्लेस वेयर एयर प्रेशर इज हाई, इट स्टार्ट्स मूविंग टू टेक्स द प्लेस ऑफ द लोअर एयर प्रेशर. दिस इज बेसिक मैकेनिज्म and that is trade winds. The hot air from the equator rises and becomes cooler and heavier. It comes down near the 30-degree north and 30-degree south latitude and blows towards the much colder regions. ये mechanism is happening जैसे एयर क्या होना है, एयर बिकम हॉट, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फिर वो ऊपर चली जाएगी, फिर कूल एयर आ जाएगी. एंड दिस विंड्स दैट ब्लो टूवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आर कॉल्ड वेस्ट्राइल्स. उनको वेस्ट्राइल्स बोलते हैं. The air at 60 degree latitude at both side of the equator is warmer than at the poles. पोल्स से ज़्यादा 60 डिग्री लैटिट्यूड वाला जो इक्वेटर का पार्ट है वहाँ पे एयर हॉट रहती है. वाई दिस इज हैपन, बिकॉज इक्वेटर तो बिल्कुल एंड का पार्ट है जहाँ पे सनलाइट पहुँचना बहुत मुश्किल है. सो वेरी हार्डली वहाँ का टेम्परेचर इट इज़ 0 डिग्री, बिलो दैन 0 डिग्री एंड ऑल दैट स्टफ. तो डेफिनेटली 60 डिग्री लैटिट्यूड वाला जो पार्ट है दैट टेम्परेचर इज मोर देन इक्वेटर, सॉरी मोर देन पोल्स से ज़्यादा है उनका. एंड तो क्या हो जाएगा, दिस वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर रीजन. द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल्स कैसे हमें कंसिडर करना है, जो टू साइड्स में, बिल्कुल टू साइड्स में है, जहाँ पे जैसे सन यहाँ पे है तो ऐसे वहाँ पे सनरेज पहुँचते हैं. इक्वेटर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर आते हैं, यहाँ पे थोड़े ऑब्लिक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्लिक, तो पहुँचना मुश्किल है. तो ये एंड जो है साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल हम ऐसे बोलते हैं, ये वाला साउथ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल. तो नॉर्थ पोल का हमेशा टेम्परेचर बहुत कम रहता है कंपैरेटिवली अदर पार्ट ऑफ अर्थ. Does winds blow from the old polar region towards the 60 degree north and 60 degree south latitude are called polar winds. तो polar winds किसे बोलते हैं, जैसे 60 डिग्री लैटिट्यूड वाला जो प्लेस है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली, पोलर रीजन से कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा. तो वो एयर 60 डिग्री वाली एयर ऊपर चली जाएगी. पोलर रीजन पे बहुत ठंडी हवा है तो इट विल रश टूवर्ड 60 डिग्री लैटिट्यूड एंड वो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलार विंड बोलते हैं. uneven heating of land and water. Land heats up faster and also cools down faster. ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो लैंड होती है वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है एंड जल्दी इट रिलीज एस्केप ऑल्सो. ड्यूरिंग समर इन कोस्टल इंडिया the land that surrounds water in the ocean gets heated much faster and the air above it rises up. क्या हो जाएगा समर सीजन में जनरली, क्योंकि बिकॉज समर सीजन में ये मैकेनिज्म बहुत प्रोमिनेंटली आपको हमें देखने को मिलता है, क्योंकि समर सीजन में जैसे सन बहुत एक्सपोज होता है
वी आर टॉकिंग अबाउट, हम इंडिया की बात कर रहे हैं. एंड वेन कोस्टल एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो वॉट एवर कोस्टल एरिया इज कवर्ड, जैसे उसके साइड में जो लैंड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू सनलाइट वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाएगा. फिर जैसे द मोमेंट टेम्परेचर इज इंक्रीज, एयर विल मूव अप, जैसे राइजेस अप, एंड वहाँ पे एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. द एयर विच इज ऑन द ओशियन बॉडीज, एक्वाटिक बॉडीज, इट रशेस टूवर्ड्स द लैंड एंड इट टेक्स प्लेस द, वो जो एयर रिड्यूस प्रेशर है वहाँ की जगह ले लेगा. The cool air above the ocean is higher pressure and blows towards land carrying water vapor with it, called summer monsoon wind. अब जो ओशियन या फिर एक्वाटिक बॉडीज के ऊपर का जो एयर था, इट इज अबाव द ओशियन बॉडी और एक्वाटिक बॉडी, तो इट हैज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ, उसमें क्या रहेगा, वाटर वेपर रहेगा, एंड वो विंड आके लैंड पे जगह ले लेगा. तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स. हम उन्हें मॉनसून विंड्स बोलते हैं. दे कॉज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड वही पूरे इंडिया में रेनफॉल लाते हैं. इन वाटर द लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर दैन द वाटर इन द ओशियन. लैंड पे क्या हो जाता है, जल्दी वो टेम्परेचर भी कम हो जाता है. द एयर अबाव द वाटर बिंग हॉट राइजेस अप, creating a low pressure. The cool air above the land, which is at high pressure, rushes towards ocean, called winter monsoon winds. इन्हें winter monsoon winds बोलते हैं. These winds do not bring much rain other than in the coastal areas. Wind monsoon वाला जो होता है वो ज़्यादा उसके साथ water vapor नहीं होते हैं, तो वो इट विंड्स डू नॉट ब्रिंग मच रेन. तो कितना होता है उनमें, थोड़ा कैपेसिटी होता है, तो कोस्टल एरियाज में ही वी आर एक्सपीरियंसिंग रेन. सो जस्ट लाइक तमिलनाडु इज अ स्टेट विच इज इन कोस्टल एरियाज, है ना. विंटर मॉनसून विंड पिक्स अप मॉइस्चर वाइल ब्लोइंग ओवर द बे ऑफ बंगाल.